Today I am going to discuss first law of thermodynamics. This topic is part of general topic heat. In this chapter, in this topic heat, we have already discussed thermal expansion and kinetic theory of gases, in which you were told about ideal gas equation, which will be extensively used while I will discuss this law. So this first law of thermodynamics is based upon conservation of energy. You have already studied conservation of energy in mechanics, where you say कि under conservative forces like gravitational force, electrostatic force, sum of kinetic and potential energy, commonly known as mechanical energy, remains same. Here I am going to explain how this law is based upon conservation of energy. Consider a cylinder, piston cylinder. Inside cylinder there is an ideal gas. In first law we have to consider ideal gas. In physics course, most of the time we deal with ideal gas. There is ideal gas inside a container, and this is piston, and this is cylinder. When you supply heat to the ideal gas, this heat is utilized in two parts. One part in increasing temperature of gas, or in other words we can say one part in increasing its internal energy. We should keep in mind that internal energy of an ideal gas depends only on temperature. The amount of heat supplied, one part is utilized in increasing its internal energy, and if this piston is free to move, then another part is utilized in doing work. When you are supplying heat to the gas, the temperature of gas will increase and this piston, if free to move, will move upward. It means work will be done by the gas. So you can say that this amount delta Q is utilized in two parts. One part in increasing its internal energy and another part in doing work. In first law of thermodynamics, these three characters, delta Q, amount of heat supplied or rejected, delta U, change in internal energy, and work done, these are the three main factors. If we take a small amount, then you can say dQ equal to du plus dW. Further proceeding in first law, first I would like to indicate what are the sign conventions adopted while writing delta Q, delta U and delta W. First one, I consider delta U, that is change in internal energy. If temperature of gas increases, it means internal energy increases, because I have told internal energy of ideal gas depends only on its temperature. So if temperature is increasing, then delta U is considered positive, and if temperature is decreasing, delta U is considered negative. This is the sign convention for change in internal energy. While considering now, take delta Q, when heat is supplied to the gas or heat is absorbed by the gas, delta Q is considered positive. And when you are supplying heat to a gas, then delta Q is considered positive. And when heat is taken out of gas, suppose some ice is placed around this cylinder, then heat will flow from gas to ice. It means heat is ejected by the gas.
So if heat is rejected by the gas, then delta Q is considered negative. And when heat is absorbed by gas, so delta Q is considered positive. And third one is work done. If volume of gas increases, we say कि work is done by the gas. If volume increases, यानी कि change in volume positive, तो we say कि work is done by the gas or by the system, ये सही बोल सकते हैं, and delta W is considered positive. If volume of gas decreases, it means work is done on the gas and delta W is considered negative. Since this topic is common in physics and chemistry, केमिस्ट्री में भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पे इस वर्डन का साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट है कुछ किताबों में. वहाँ पे उल्टा मान के चलते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ वर्डन होता है नेगेटिव, अगर वॉल्यूम घटता है तो वर्डन होता है पॉजिटिव. खैर, लेकिन फिजिक्स में हमें अपना यही कन्वेंशन रिटेन करना है, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्डन नेगेटिव. तो मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये तीन कैरेक्टर हैं और तीनों का आपस में रिलेशन है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अच्छा, इन्हें सपोर्ट करने के लिए जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड दोज कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन. दिस इज मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है. And this equation is given by PV equal to nRT, where n are the number of moles, R is universal gas constant, and T is absolute temperature, and of course P is pressure, and V is volume. एक चीज होती है process. Suppose a gas is having state P1, V1, and T1. This is state number 1. And you have done something, then its pressure becomes P2, volume V2 and temperature T2. तो इसको कहेंगे स्टेट 1, इसे कहेंगे स्टेट 2, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने का रास्ता उसे कहेंगे प्रोसेस. तो मैंने कहा ये तीन हो गए आपके थर्मल कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड बाय PV इक्वल टू nRT. और जब गैस शिफ्ट करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, and that is known as process. अब ये तीन है आपके पास, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू. इनके लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, यानी कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं. सबसे पहले ले लेते हैं वर्डन. वर्डन, तो वर्डन के लिए एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है जो केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है. केमिस्ट्री के अधिकतर प्रोसेसेस में प्रेशर होता है कांस्टेंट, तो इससे आपका काम चल जाता है. तो वर्डन कैन बी रिटन एज P डेल्टा V. P डेल्टा V, डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1. वर्डन इन द प्रोसेस 1:2 इक्वल टू P डेल्टा V. शर्त यहां पे यह है कि P इज कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्डन कैन बी कैलकुलेटेड with the help of P delta V. This is most popular formula in chemistry. फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं. अब हो सकता है कि किसी प्रोसेस में वो कहता है आपसे कि प्रेशर कांस्टेंट है, ना वो प्रेशर देगा ना वॉल्यूम देगा. तो यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी आइडियल गैस इक्वेशन. आप कह सकते हैं कि PV1 भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पहली स्टेट है PV1 T1, यहां से आप गए दूसरी स्टेट में PV2 T2. तो आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि PV1 इक्वल टू nRT1, और ऐसे कह सकते हैं PV2 इक्वल टू nRT2. तो वर्डन व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट कैन बी रिटन एज P डेल्टा V या nR डेल्टा T. ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है
अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया होगा तो आप यूज कर लेना पी डेल्टा वी। अगर खाली टेम्परेचर दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। वर्क डन व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, उसका नाम आइसोबारिक प्रोसेस भी है। देन वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला पी डेल्टा वी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, हम ग्राफ अगर हमें दिए होंगे, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में है, तो एरिया से भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे अगर एक जनरल कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, वो जनरल कंक्लूजन ये है कि जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लिखी हुई है और जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिखी हुई है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया। सपोज यहां पे आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और एक्स हो गया मान लो टाइम, इसकी यूनिट हो गई आपकी सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को आप सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट मीटर। मेरा कहने का मतलब है क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए और जो क्वांटिटी आए दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जानते हो ऊपर की तरफ एरिया लेते हैं पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, और डिस्टेंस के लिए सारा एरिया लेते हैं पॉजिटिव। तो ये जनरल कंक्लूजन है। ऐसे आप कह सकते हैं कि फोर्स टाइम, अगर यहाँ पे आपने ले लिया फोर्स, यहाँ पे ले लिया टाइम, तो ये न्यूटन सेकेंड, ये यूनिट है आपकी चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम, फोर्स ग्राफ इसका एरिया देगा आपका वर्क डन। तो यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, the graph, if we plot a graph between pressure and volume, and this is a process from 1 to 2, हाँ एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप परपेंडिकुलर पूरा यहाँ वॉल्यूम तक डालेंगे। तो एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी या वीपी, एरिया ऑफ पीवी और वीपी डायग्राम गिव्स वर्क। अच्छा, यहाँ पे वर्क का साइन आपको अपने आप बताना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। हाँ, जब वर्क आप किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जैसे पी डेल्टा वी या और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, तो प्लस माइनस अपने आप आएगा। तो वर्क डन इन प्रोसेस द एरिया बिलो प्रोसेस। ये ध्यान रखा जाए कि परपेंडिकुलर शुड बी ऑन वॉल्यूम एक्सिस। इफ यू टेक वी ऑन वाई एक्सिस, प्रेशर ऑन दिस, and this is the process. So to calculate work done, you have to draw perpendicular on the volume axis, and this area give work done. Here 1 to 2 volume is increasing, so obvious है कि work done is positive. So work done in a process is the area below process. अब एक process आप कह सकते हैं cyclic process. Cyclic process means इनिशियल एंड फाइनल थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स आर सेम। जहां से चले थे वहीं आप लौट आएंगे। तो अगर मान लीजिए इस टाइप से कोई साइक्लिक प्रोसेस है 1 2 3 4 1, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वर्क डन, तो सिंपली एरिया, इसका एरिया। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया ऑफ साइकिल। या थोड़ी सी आप ध्यान रख सकते हैं तो स्पीड थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। अगर पीवी डायग्राम है और क्लॉकवाइज साइकिल है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्क डन होगा पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। अगर वीपी डायग्राम है, वीपी से मेरा मतलब वाई एक्सिस पे आपने वी लिया है वॉल्यूम, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो यहाँ पे वर्क डन होगा आपका नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो यहाँ पे वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव। अच्छा, ये ध्यान रहे कि वर्क डन बाय एरिया कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन केस ऑफ पीवी और वीपी डायग्राम। अगर पीवी के अलावा या वीपी के अलावा कोई और डायग्राम है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर,
तब एरिया काम नहीं करेगा, तब आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखा जाए। वर्क डन बाय एरिया कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन केस ऑफ पीवी और वीपी डायग्राम। वर्क डन बाय एरिया कैन बी कैलकुलेटेड by work done by area can be calculated only in PV और VP डायग्राम। तो एक मैंने बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो P डेल्टा V या NR डेल्टा T। बाकी अगर आपके पास PV डायग्राम है एक सिंगल प्रोसेस के लिए, उसके नीचे का आप ले लेना एरिया, दैट विल गिव वर्क। अगर साइक्लिक प्रोसेस है उसका कंप्लीट एरिया। और ये मैंने बताया कि ध्यान रहे कि वर्क डन बाय एरिया कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन केस ऑफ पीवी और वीपी डायग्राम। और तीसरा जो हमारे पास आता है, दीज आर अल्टीमेट मेथड्स, मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हैं। इन जनरल जो चीज़ें वेरिएबल हैं, पे दो तरह की चीज़ें हैं फिजिक्स में। अगर कांस्टेंट चीज़ें हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और अगर वेरिएबल चीज़ें हैं तो हमारे पास हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आपको फिर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, a इक्वल टू dv बाई dt या vdv बाई ds, और वेलोसिटी दे रखी है तो ds बाई dt से जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, इन जनरल फॉर्मूला जो है, अच्छा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हर स्टेज में एप्लीकेबल है। फॉर वेरिएबल क्वांटिटीज वर्क डन इन ए प्रोसेस, पहली जो इक्वेशन आप लिखिएगा वो लिखिएगा पी डी वी, और जो डी के बाद लिखा हुआ इसके लिमिट्स लेते हैं v1 टू v2, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। और दुनिया की कोई सी भी प्रोसेस हो, पी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वहां पे इस इक्वेशन का पी वी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन का यूज करते हुए यू कैन कैलकुलेट वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या किसी प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से P आ जाएगा अपने पास एन आर टी अपॉन वी, और वॉल्यूम चेंज हुआ है आपका V1 टू V2, तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, P की जगह आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी, दैट इज डी वी, तो V1 अपॉन V2, तो एन आर टी यह आ जाएगा लॉग, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v v1 टू v2, लॉग शॉक की वैल्यू आपने पुट करी तो यू विल गेट nRT log v2 अपॉन v1। फिजिक्स में हम अधिकतर बेस E का यूज करते हैं तो ln यूज कर लेते हैं। केमिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतर 10 का बेस यूज किया जाता है, जब 10 का बेस यूज करिएगा तो ये आ जाएगा 2.303 nRT log v2 अपॉन v1। तो ये मैंने आपको बताया 3 तरीके, उसमें मोस्ट जनरल तरीका ये तीसरे वाला था। इसके बाद कुछ प्रोसेस हम डिस्कस कर सकते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे पास, उनके कंक्लूजन डायरेक्टली आप यूज करिएगा। जैसे एक प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में महत्वपूर्ण चीज ये है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ठीक है, वर्डन है आपका नेगेटिव। यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करिएगा बिटवीन, ये ग्राफ मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी डिटेल में सिखा चुका हूँ। जब आप ग्राफ प्लॉट करिएगा बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। इफ प्रोसेस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन पीटी डायग्राम, तो समझ लीजिएगा कि प्रोसेस है आपकी आइसोकोरिक एंड वर्डन इज 0। वर्डन 0 तो ऑब्वियसली कि जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग एन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। दूसरी प्रोसेस है आपकी आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ पे तो खैर तीनों टर्म आएंगे आपके पास, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू में आपको बता चुका हूं। यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करिएगा बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो इफ यू आर गेटिंग वॉल्यूम टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप समझ लेना कि दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस।
फिर थर्ड है आपकी आइसोथर्मल, हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, isothermal process temperature is constant, PV equal to constant. यहाँ पे ग्राफ आएगा बिटवीन P एंड V, ये बड़ा पॉपुलर ग्राफ है फिजिक्स में। 40% ग्राफ, फिजिक्स में 40% ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम पे है, तो ये ग्राफ हो गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें और बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व दैट इज dp अपॉन dv माइनस p अपॉन v। आप कह सकते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू प्रेशर। वार्डन का फॉर्मूला मैं आइसोथर्मल में भी लिख चुका हूँ, वगैरह वगैरह। अब आप जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल एनर्जी के लिए पूरी फिजिक्स में हमारे पास केवल एक ही मेजर फॉर्मूला है, NCVT। CVCP में आपको ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिखा चुका हूँ, या चेंज इन एनर्जी NCV डेल्टा T, या डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे NCV dt। इसी तरीके से डेल्टा Q के लिए मेरे पास फॉर्मूला है NC डेल्टा T। हाँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो डेल्टा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो डेल्टा Q इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। डेल्टा U, डेल्टा W और डेल्टा U के लिए जो फर्स्ट लॉ में यूज किए जाने वाले हैं। क्विकली एक छोटी सी बात, एक बात और मैं बता दूं कि अगर कोई सी भी प्रोसेस आपके लिए दी हो और आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी जाए, एक सवाल काफी पॉपुलर बनता है, प्रोसेस इज गिवन मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिक्वायर्ड, मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिक्वायर्ड, जिसे आप सी के नाम से जानते हैं। भाई आइसोकोरिक में तो CV हो गई, आइसोबारिक में CP हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस में इनफाइनाइट हो गई, सॉरी 0 हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट हो गई। वैसे अगर दिया जाए तो जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो dq du प्लस dw, यहां से आप लिख सकते हो NC dt, NCV dt प्लस P dv, तो C इक्वल टू आ जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला P/N dV/dt। अब प्रोसेस आपको दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कि T इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बी, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करके dV/dt निकाल लेंगे, फिर एडजस्टमेंट करके कुछ और चीज़ निकाल लेंगे। तो किसी भी प्रोसेस के लिए आप C निकाल सकते हो। एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर इस टाइप की प्रोसेस है कि PV/Q N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, कोई नंबर है 1 2 3 3/2 कुछ भी हो सकता है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N। तो अगर इस टाइप की प्रोसेस है डायरेक्ट लगा देना, और दुनिया की कोई सी प्रोसेस हो जनरल मेथड में आपको बता चुका। बस अभी मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, बाकी बातें इन नेक्स्ट लेक्चर।